बजाज यानी आरकेडी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, shalom, sat sri akal, good evening, and as they say in Chinese, ni hao, which is hello for Chinese, and konnichiwa, which is hello for Japanese. Yes. And you want to talk to all your viewers in Africa? Africa, Southeast Africa. Please. Abari Yako, Jambo, welcome. That is, of course, in Swahili. In Swahili, which, by the way, was one of the a language which was spoken by a huge number of people at one time. Just about everybody knew Swahili. In fact, anybody I knew used to know Swahili, because most of the people were at that time working in Africa. There were different times. And so Mr. Kejriwal stays in custody till 3rd of April. And the Honorable Judge has refused to pass an order on the bail application, on the interim application, because as she says, if I were to grant him interim relief, that will be like deciding the main petition, which is absolutely true. So he stays in jail, as was speculated right over here. Kejriwal ji jail mein hi rahenge, custody mein hi rahenge, and he is in custody, which is rather sad. So Mr. Kejriwal will not be able to campaign in the elections. I don't really see. PMLA का कोई भी केसेस में आज तक किसी को इमीडिएट रिलीफ मिला ही नहीं है. If you see the history of PMLA in the few years, nobody has got immediate relief. The closest anybody got relief was after 103 days, where Sanjay Raut came out. Yes, and which also was a miracle, by the way. I don't know how 103 days. Even after, when the judge observed that you don't have anything against Sanjay Raut, please follow something that you want, and he went on for 3 or 4 hearings continuously, when the judge asked the enforcement director to produce any shred of evidence that you have against this man. He's already in jail for so long. That's right. And ultimately, after 100 days or 103 days, Sanjay Raut could come out. And probably he's one of the most, he's the only leader who's come out so early. The only political leader. Yes. And the only accused in a PMLA matter who has been released within 103 days, because usually this takes about 2.5 years. दो ढाई साल के बाद ही आदमी आता है PMLA में. माशाल्लाह जबरदस्त कानून है सर. ऐसा कानून है कि बस एक बार अगर ईडी आपके पीछे लग गया और आप जेल चले गए, उसके बाद आप भूल जाइए, 2, 2.5, 3 साल तो भूल ही जाइए कि मतलब आप बाहर नहीं आएंगे, आपको बेल मिलने वाली नहीं है. सीधी सादी बात है. Which is rather sad actually. Which is really and truly sad in a way. I mean, it's draconian. It's draconian because the entire objective probably of enforcement directorate and all these proceeds of crime being used for terror funding or against national interest. Yes, sir. I mean, now you are using this draconian law against civilians. सर वो हमारे बैंड्रा का जो पान वाला है, मुच्छड़ पान वाला, उसको भी PMLA में डाल दिया. उसके अलावा 2-3 और लोग हैं, कोई दूध वाला है, उस बेचारे को PMLA में डाल दिया ईडी के. मतलब it's high time, you need to review this law. As many of the lawyers were arguing with themselves. You attach their bank accounts. You have frozen all their accounts. You impounded their passport. All assets, everything has been attached. Where do you expect them to go? Custody of that person, because what is he going to do with that? और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अभी तक तो मुख्यमंत्री हैं. वो कहाँ जाएगा भाई? He is not a flight risk. अगर आपको किसी को जेल में रखना है, आप जेल में क्यों रखते हैं? कि वो एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं करेगा, गवाहों को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, भागेगा नहीं. अरे ये कोई ललित मोदी है क्या? ये कोई विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है कि भाग जाएगा? अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री है भाई. Where is he going to go? I find this very strange. In any event, as far as the basic premise of the PMLA law is concerned, it is absolutely against every tenet of Anglo-Saxon law, wherein a man is supposed to be innocent till proven guilty. Now you are guilty till you prove yourself innocent. It is like saying, Pradeep ji, you are responsible for the murder of Mahatma Gandhi. Now you prove that you did not murder Mahatma Gandhi. ये क्या मतलब हुआ यार?
The burden of proof is on us. is totally on you. And why do you get arrested? You get arrested because the IO, who is of the level of a sub-inspector or inspector, otherwise called an assistant director in the department, he feels, it is his belief that you are guilty. मतलब कि उनकी फीलिंग है साहब कि आपने जुर्म किया है इसलिए आप जाइए जेल में. अब फीलिंग के साथ कौन लड़ सकता है प्रदीप जी? ये तो माशाल्लाह मतलब बड़ी अजीब व गरीब मसला है. दिस इज लाइक अ काफ्कास्क यूनिवर्स. रिमेंबर फ्रांस काफ्का, द कासल? People used to think that Kafka was mad. He wasn't mad. We are living in that world right now. Right. We'll talk about that in just a little while. At the moment with us from Uttar Pradesh, we have Mr. Manish Singh of the Samajwadi Party. Samajwadi Party really doing very well in terms of the kind of support they're getting on the ground. Manish Singh ji, namaskar. सर नमस्कार सर, नमस्कार. कैसे हैं? बड़े नमस्ते. मैं बढ़िया, ठीक हूँ. बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर, बड़े खुश नजर आ रहे हैं. मुझे लगता है आपको वैसे खुश होना भी चाहिए, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर नहीं दिख रहा साहब, ये सोशल मीडिया के ऊपर दिख रहा है. अरे क्या भीड़ आ रही है साहब अखिलेश यादव जी के लिए, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उनकी हर एक मीटिंग में. छोटी सी उनकी मीटिंग होती है, कहीं गाड़ी से इधर से उधर जाते हैं, अरे पता नहीं हजारों की भीड़ एकदम इकट्ठे आ जाती है. लेकिन ये दिखा क्यों नहीं रहे सर, जरा बताएंगे? मतलब आप अखिलेश यादव जी के साथ इतना मतलब नाइंसाफी, ये क्या हो रहा है? वाई कि अखिलेश यादव जी की जो खबर है वो जान करके सप्रेस क्यों की जा रही है? जरा बताएं सर, मनीष सिंह जी. सर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो कुछ विशुद्ध, जरा जोर से बोले, आपकी युवा आवाज नेता, धीमी आ रही है, जरा जोर से बोले सर प्लीज. कुछ विशुद्ध जो राजनीतिक नेता बचे हैं, उसमें एक श्री अखिलेश यादव जी हैं जो देश की राजनीति की एक उम्मीद है, देश की लोकतंत्र के लिए और देश की संविधान के लिए एक उम्मीद है, एक चिराग है. उत्तर प्रदेश की जनता श्री अखिलेश यादव जी के बारे में, हमारे यहाँ जो एक कहावत कही जाती है कि श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के एक अक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश के एक आईना भी हैं. दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर, जो टेलीविजन पे दिखाने की बात, भीड़ उनकी और उनकी जो गैदरिंग होती है उनके कार्यक्रमों में उसको दिखाने की जहां तक, तो हम लोगों ने तो अब इसकी उम्मीद भी छोड़ दिया है. और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी टेलीविजन का कोई कार्यक्रम शो करते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं कि मैं अब टेलीविजन नहीं देखता हूं, मैं न्यूज चैनल नहीं देखता हूं, इसलिए कि हमारी खबरें होती नहीं है न्यूज चैनलों में. तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि हम लोग टेलीविजन नहीं देखते हैं, न्यूज चैनल्स नहीं देखते हैं, इसलिए कि जो विपक्ष की खबरें होती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं. तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर कि हम आपको साधुवाद देते हैं, हम आपको दिल से आभार और थैंक्स प्रकट करते हैं आपके प्रति कि आप लोगों ने इतना एक जो सोशल मीडिया पे जो एक प्लेटफॉर्म है, जो हम लोग मतलब अपनी बात कह सकते हैं, आपकी बात हम सुन सकते हैं, आपके सवालों का हम जवाब दे सकते हैं. आप हमारे जवाबों से कितना सहमत होते हो तो एक आपका विषय है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से एक विपक्ष को प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए समाजवादी पार्टी दिल से आपके प्रति आभार प्रकट करती है. जी जहाँ तक हम लोगों का सवाल है साहब, हम तो हर एक को देते हैं, मतलब हर एक का हक बनता है. मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में हर एक का हक है. यार मैं तो पारंपरिक किस्म का पत्रकार हूँ साहब, प्रदीप जी भी बिल्कुल वैसे ही कि हर एक पक्ष को लोगों के सामने रखना हमारा काम है, जिम्मेवारी ये है. बाकी लोग अपना मन खुद बनाएं, वो उनके ऊपर है. लेकिन जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है. लेकिन उत्तर प्रदेश की अभी स्थिति क्या है वो जरा बताएं सर, उसके बारे में जरा विश्लेषण करके बताएं आज की तारीख में प्लीज. सर आज नामांकन का अंतिम दिन था जी, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को सर आप जितना अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस जितना होगा आपका, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के 80 जनपदों में 75 जनपदों में और 80 लोकसभा क्षेत्रों में पूरी तरह से जराइम की दुनिया कायम हो चुकी है. पूरी तरह से आपको चुनाव आयोग का जो एक प्रभाव दिखना चाहिए वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा. सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता के पेट में पलने वाला प्रशासन है वो पूरी तरह से विपक्ष को डैमेज करने में लगा हुआ है. और सत्ता के जो बड़े बड़े नेता हैं या जिले स्तर के नेता हैं या ब्लॉक लेवल के बड़े बड़े काफिलों को लेकर के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में होर्डिंग्स, बैनर, जो एक पंपलेट होता है वो लेकर के घूम रहे हैं. कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता दिखाई नहीं देता है कि उत्तर प्रदेश में लागू है. दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर कि आज
वोटर डरा हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है कि आज लीडरों को डराया जा रहा है, ग्राम प्रधानों को डराया जा रहा है, ब्लॉक प्रमुखों को डराया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को डराया जा रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डराया जा रहा है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वोटरों को, लाभार्थी जो लोग हैं उनको जाकर के, जो ये भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख है, जब लाभार्थी जी ने कहा जा रहा है, जब लाभार्थी ये सवाल कर रहा है कि मोदी जी ने हमको गैस सिलेंडर दिया, तो मोदी जी ने नहीं दिया। गैस का सिलेंडर तो कांग्रेस के जमाने में और यूपीए के जमाने में शुरू हुआ देना, ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो जब लाभार्थी ये बात कहता है कि हमने तो नौकरी के नाम पे आपको वोट दिया था, तो जैसे ही लाभार्थी नौकरी की बात कर रहा है तो पन्ना प्रमुख डराने का काम कर रहा है और कह रहा है कि मोदी जी ने अगर गैस का सिलेंडर दिया है, अगर मोदी जी को आप वोट नहीं देंगे, शौचालय के लिए शौचालय मोदी जी ने दिया है, अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये शौचालय का पैसा वापस करा लिया जाएगा, गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस करा। इस तरह की भ्रामक बातें भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों के द्वारा लाभार्थियों से की जा रही है। तो मनीष सिंह जी, बात यह है कि रामपुर में पूरे मीडिया में यह छाया हुआ कि रामपुर में बहुत जबरदस्त जंग होने वाले हैं, आजम खान, अखिलेश यादव जी और आजम खान के बीच में, और कैंडिडेट्स के ऊपर बहुत बहस हुआ, ये हो गया। फिर शिवपाल यादव जी गए सीतापुर जेल गए आजम खान जी को मनाने, आजम खान जी बहिष्कार करने वाले हैं रामपुर सीट, और 2-3 सीट में जो आजम खान के कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं दिया जा रहा। तो क्या आखिरकार ये सॉल्व होगा कि नहीं? बिकॉज आजम खान कोई छोटा नेता नहीं है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है इलेक्शंस, अगर उनके बात अगर नहीं माने तो कैसे होगा ये? आपका वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन सिर्फ एक इसका छोटा सा उत्तर है सर, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, और हमारी पार्टी ने समय रहते इसको सुलझा लिया है। और समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में भी मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ लड़ती हुई दिखाई देगी, और रामपुर में भी मुस्तैदी और ताकत के साथ लड़ती दिखाई देगी, और रामपुर भी हम जीतेंगे और मुरादाबाद भी जीतेंगे, और रामपुर की साइकिल दिल्ली पहुंचेगी और मुरादाबाद की भी साइकिल दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन मनीष सिंह जी, सुनने में तो ये आ रहा है कि शायद रामपुर में आप अपना कैंडिडेट देंगे ही नहीं, सुनने में तो ये आ रहा है। आजम खान साहब ने कंडीशन रख दी है ऐसा कुछ है क्या? आज चल रहा है, मतलब हर आपके जो फेवरेट चैनल्स हैं उनमें चल रहा है, जैसे आज तक हो गया, रिपब्लिक हो गया, इन सब में चल रहा है, बहुत अच्छा है। नहीं, आपका सर कहना सही है, लेकिन इतनी बात जरूर हम कहेंगे कि रामपुर से हम साइकिल को ही दिल्ली लेकर के जाएंगे, और मुरादाबाद से भी साइकिल को ही दिल्ली लेकर के जाएंगे। भले साइकिल पे जो मर्जी बैठे, लेकिन जाएगी नहीं, साइकिल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेता ही चुनाव लड़ेगा, और वो नेता जीत करके जनता के जनमत से दिल्ली जाएगा और देश की पार्लियामेंट में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी और जो सामंती सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेगा और एक इंडिया की सरकार बनाएगा। बट मुसलमान वोट्स अखिलेश यादव जी के खिलाफ गए तो बिकॉज आजम खान जी बहुत ये संकल्प लेके बैठे कि नहीं, ये 2-3 सीट में जो है कोई चॉइस नहीं है, आपको मेरा सुनना पड़ेगा। तो अगर नहीं सुने तो क्या, बिकॉज मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा वोट शेयर है, करीबन 20% वोट शेयर है यूपी का, क्या ये इफेक्ट करेगा अखिलेश यादव जी को इलेक्शन में? बिकॉज इस फैक्टर को आप नकार नहीं सकते कि मुसलमान वोट बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, और जब भी अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे तो विक्ट्री अश्योर्ड है। समाजवादी पार्टी का जब 5 नवंबर 1992 को गठन हुआ और बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी को बनाने का निर्णय किया गया था और वहां से फैसला हुआ, तो हम लोगों की सबसे जो प्रमुख हमारे पार्टी का जो सिद्धांत बना, उसमें हम लोगों ने निर्णय किया था, जो हमारे पुरखे और जो पूर्वज थे, आदरणीय नेताजी, आदरणीय आजम साहब, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी जैसे महान समाजवादी नेताओं ने जो एक पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी को चलाने के लिए तैयार किया, उसमें हम लोगों की सबसे पहला सिद्धांत था कि सामंतियों को हम लोग सत्ता में नहीं आने देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि सांप्रदायिक शक्तियों को हम सत्ता से दूर रखेंगे। तो इन निर्णयों के साथ हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री आजम खान जी ने यह निर्णय लिया था, और बेगम हजरत महल पार्क में वो उपस्थित थे। वो हमारे पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं, वो हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, और वो हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। हमारी पार्टी से जो एक मुस्लिम वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का जो एक जुड़ाव है, वो पारिवारिक जुड़ाव है। परिवार में थोड़ी बहुत बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जहां तक लड़ाई के मैदान की बात है, तो जब भी समाजवादी पार्टी ने लड़ाई के मैदान में अपने हाथ को आजमाया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जब भी हमारी पार्टी ने निर्णय किया है, तो मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग
दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के जो दबे कुचले कमजोर लोग हैं, जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उन लोगों ने भी समाजवादियों का साथ दिया है। और इस परिस्थिति में जब देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए युद्ध की अंतिम जो ये 2024 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है सर। 2024 का चुनाव हम लोग ऐसा मानते हैं यह देश की लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए अंतिम चुनाव है। इस चुनाव को जीतने के लिए देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता एकमत होकर के इंडिया गठबंधन के साथ है और श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में 80 की लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें जीतने के लिए पूरी तरह से कमर कस के तैयार है। मनीष सिंह जी, यहाँ पर एक और चीज इसी विषय के ऊपर, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% मुस्लिम आबादी है, तो तकरीबन वोट भी उतने ही होंगे जहां तक मैं जानता हूं। आपको ज्यादा मालूम होगा कितने, मुझे लगता है 19% है जहां तक मैं समझता हूं। अभी क्या हो रहा है वहां पे कि कंप्लीट साइलेंस है, बिल्कुल मुस्लिम मतदाता जो है वो अभी बिल्कुल चुपचाप है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये चुप्पी जो है ये किस वजह से है? ये बीजेपी के डर की वजह से है या इस वजह से है कि कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अगर वो जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए? किस वजह से है ये? मैंने आज तक कभी इतना साइलेंस नहीं देखा अल्पसंख्यक वोट में उत्तर प्रदेश में। सर, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन सिर्फ यह मुस्लिम मतदाता में, अल्पसंख्यक मतदाता में ये भावना नहीं है, ये समाज का हर तबका। जैसे मोदी जी 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा लगाया जा रहा था जी, 2 करोड़ रोजगार देने की, नौकरी देने की बात साल में कही जा रही थी, इस तरह के नारे तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर नहीं लगा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे और जनता पूरी तरह से साइलेंट है। इस बात पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम मतदाता के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो संपूर्ण आबादी है, तकरीबन 25 करोड़ की जो जनता है वो पूरी तरह से साइलेंट है और साइलेंट वोटिंग करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जो उत्तर प्रदेश के महान मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से वोट करने के लिए तैयार है और जो साइलेंट वोट पड़ेगा इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे के ऊपर बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो जैसे प्रदीप जी हर बार सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, साहब देखिए पिछले 10 साल का जो बीजेपी ने मतलब खुद रिलीज किया है, उसके ऊपर श्री राम मंदिर भी आ गया, उसके ऊपर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हमने आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा। फिर भी आप उम्मीद लेके बैठे हैं कि आप मतलब भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? नहीं सर, हम उम्मीद लेकर के नहीं बैठे हैं। हम अपने पराक्रम पर, हम अपने परिश्रम पर, अपने नेता के सिद्धांत पर, अपने नेता की समाजवादी विचार पर और जो हमारे पुरखे और पूर्वजों की बहुत बड़ी समाजवादी एक लेगेसी है जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करती है, उसके आधार पर सर हम इतना सिर्फ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, उत्तर प्रदेश में क्राइम अपने चरम पर है, उत्तर प्रदेश में किसी के पास, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है, छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानदारी खोते चले जा रहे हैं। और सर सड़कों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, 80% जो सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की वो पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। आए दिन सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है सर, हमारी माताएं और बहनें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में चाहे जो ढिढोरा पीटा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विज्ञापन के माध्यम से, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की माताएं और बहनें असुरक्षित हैं। कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, उत्तर प्रदेश का हर अभिभावक ये सोचता है कि हमारी बेटी घर से निकली है तो सुरक्षित वापस अपने घर आ जाए। हर भाई ये सोचता है कि हमारी बहन घर से बाहर निकली है तो वापस आ जाए। इस तरह की जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है, आज उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के शासन से, प्रशासन से, नेताओं से और व्यवस्थाओं से डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसी का प्रतिफल दिखाई देने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साइलेंट होकर के उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने जा रहा है। मनीष सिंह जी, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, होली 550 साल के बाद, 550 इयर्स के बाद राम मंदिर का निर्माण और होली खेला गया। वी सॉ योगी आदित्यनाथ वहां पर एकदम टोटल इन्वॉल्व होकर होली मनाए
और ये एक बड़ा इवेंट है नॉट ओनली उत्तर प्रदेश के लिए पर पूरे देश में, और जो भी राम भक्त है उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट है कि 500-550 साल के बाद अयोध्या में और राम मंदिर में होली मनाया गया। तो ये उसमें अपने आप में एक अचीवमेंट है जो मोदी साहब, योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कहता कि जो स्लेव मेंटालिटी थे कि हम लोग दबे हुए, हम आक्रमण करके हम लोग दबाया गया है, उस चीज को मुक्त करके मोदी जी ने एक आजाद हिंदुस्तान क्रिएट किया, आजाद व्यक्ति को क्रिएट किया जो अपने आइडियोलॉजी, अपने हिंदुत्व पर कायम है, उनको प्राउड फील करते हैं, महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश एक टोटली धार्मिक एक क्षेत्र है, लोग टोटली इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में। तो क्या अचीवमेंट है जो आप चैलेंज कर पाएंगे इसको? सर, आप दोनों लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश आप लोगों को सुनता है और बहुत आदर के साथ आप लोगों का नाम लिया जाता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं सर, बहुत ही भावनात्मक रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जब ये कहा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले लोग कौन हैं? जिनके कार्यकाल में अभी कोलेटरल बॉन्ड का जो मसला उठा है सर, आप लोगों ने हमसे ज्यादा बेहतर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा, बीफ कंपनियों से तक पैसा लिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिन लोगों ने बीफ कंपनियों से पैसा लिया, पाकिस्तान की कंपनी से तक पैसा लिया गया। अब आप कल्पना करिए कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया उनसे पैसा लिया गया। इन कंपनियों से पैसा लेने वाले लोग अगर अपने मुंह से ये नारा लगाते हैं कि जो राम को लाए हैं हमको उनको लाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने सर एक बात कही कि उत्तर प्रदेश एक धार्मिक राज्य है। हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और धर्म के आधार पर हमने सरकार नहीं बनाई है। हमने मुद्दों के आधार पर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कश लोगों के लिए हमने सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पर भरोसा करके वोट दिया है। लेकिन बहुत दुख होता है कि अब आप सोचिए कि हमारे प्रभु श्री राम जी का जो आदर्शवादी चरित्र है, वो 14 बरस के वनवास नंगे पांव रह करके, उनके साथ मां सीता तो राजा की बेटी थी, प्रभु श्री राम तो राजा के बेटे थे, लेकिन प्रकृति का ऐसा विधान, समय का ऐसा खेल कि उनको 14 बरस वन में घूमना पड़ा, नंगे पांव चले, कंदमूल फल फूल खा करके रहे। और उनका नाम लेने वाले लोग 18 हजार करोड़ की चार्टर प्लेन में चलते। उनके नाम लेने वाले लोग किसी को नंगे पांव देखा है आपने? जो योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि हम संत परंपरा से आते हैं, क्या उनके नंगे पांव देखे आपने आज तक? महंगे महंगे सूज, महंगी महंगी व्यवस्थाएं, महंगे महंगे चार्टर्ड प्लेन, महंगी महंगी तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं, भौतिक सुखों में ये भारतीय जनता पार्टी पोसने पलने वाली जो पार्टी है, जब वो प्रभु श्री राम का। अब आप सोचिए ना कि 80-80 करोड़ रुपए के इनके जिले में कार्यालय बन रहे भारतीय जनता पार्टी के। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये मनीष सिंह जी, इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप जरा रोशनी डालिए। हर जिले में भारतीय, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, तकरीबन हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिसेस हैं वो बिल्कुल कॉर्पोरेट ऑफिसेस लगते हैं साहब। बिल्कुल कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एसी है उसमें, जबरदस्त फर्नीचर है, ब्यूटीफुल डिजाइनिंग है, मतलब फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। मतलब एक के ऊपर कोई किसी पे 40 करोड़, किसी पे 50 करोड़, पता नहीं कितने कितने पैसे खर्च हुए हैं उस पर। ये मतलब इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती सर क्या मनीष सिंह जी? नहीं सर, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता से हटा देंगे, जब हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे, तो इनकी जब परत खुलेगी, एक एक पर्दा इनका जब हटेगा, तो विश्व की सबसे भ्रष्ट सरकार ये भारतीय जनता पार्टी को होगी। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर कि ये कार्यालय बनाया किसने है, किस कंपनी को काम दिया गया? सर, जब बड़ोदरा से आप सूरत जाएंगे तो उसी हाईवेज पर आप L&T का कार्यालय है जहां पर डिजाइन की जाती है। L&T के कार्यालय में ये डिजाइनिंग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यालय है, मंडल लेवल के कार्यालय है, या प्रदेश मुख्यालय है, या दिल्ली का जो कार्यालय है इनका, वो L&T ने बनाया है और L&T को बाकायदा इसका ठेका दिया गया है। इसके एवज में L&T को देश भर में सरकारी ठेके पर काम दिए जाते हैं। तो सर, कहने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस भ्रष्टाचार में, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में, जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, नवरत्ना किस लिए बनाई गई? नवरत्ना जो कंपनियां हैं भारत की, वो इसलिए बनाई गई हैं कि मोदी के जो महत्वाकांक्षी और भौतिक सपने हैं, उन सपनों को ये धन उगाही करके, जनता के पैसे को लूट करके कैसे ये
धरातल पे उतारेंगी। और उसी का परिणाम है सर कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा जनपद मुख्यालय नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 70 से 80 करोड़ रुपए की लागत से एक एक कार्यालय अपना नहीं बनाया। वैसा तो कॉर्पोरेट कार्यालय भी नहीं है। तो सर ये हमारे उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं के साथ छल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनता के साथ छल किया है। 6 लाख से ऊपर हिंदुस्तान में गांव है सर। अगर एक एक गांव से एक एक व्यक्ति को प्रति साल मोदी जी ने अगर नौकरी दिया होता तो तकरीबन 60 लाख युवाओं को नौकरी मिली होती। लेकिन 2 करोड़ 14 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। हमारे हिंदुस्तान के युवा आंदोलन करते रहे, रात रात स्टेशन पर बैठ करके ट्रेन पकड़ करके कभी अपने सेंटर पे जाते रहे, फिर वापस आते रहे, पेपर लीक होता रहा। इस तरह की तमाम घटनाएं सर होती रही। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे देश के युवाओं के साथ जो हमने वायदा किया था उस वायदे का अगर हमने 10% भी पूरा किया होता तो हिंदुस्तान का युवा उनको थैंक्स बोलता। लेकिन 2024 मणि सिंह जी एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पता नहीं आप इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, मुझे मालूम नहीं है। एक हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, हमारे महाराष्ट्र के थे, पहले स्पीकर रह चुके थे लोकसभा के, शिवराज पाटिल साहब। शिवराज पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या 2 या 3 बार उन्होंने एक दिन में अपने कपड़े बदल लिए। इस पे ऐसी हाहाकार मच गई, ऐसी हाहाकार मच गई कि बेचारों को रिजाइन करना पड़ गया जी। तो आज के जो नेता हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो 4-4, 5-5 बार कपड़े बदलते हैं एक दिन में। नहीं सर बिल्कुल वाजिब और बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत आधे बदन पर कपड़ा डाल करके गांधी जी ने आजाद कराया है जी। हमने जिस विपत्ति में रह करके, जिस त्याग और तपस्या के साथ इस मुल्क को आजाद कराया है, ये मुल्क हमेशा आंदोलन की धरती रही है, त्याग, तपस्या और परित्याग की धरती रही है। जो लोग वस्त्र पहन करके दिन भर में 3-3, 4-4, 5-5 बार वस्त्र बदल दें, कभी चार्टर्ड में दिखेंगे, कभी आपको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में दिखेंगे, कभी किसी मतलब अलग अलग तरह के भौतिक व्यवस्थाओं में दिखने वाले लोग भारत के कभी आदर्श नहीं बन सकते हैं। भारत के आदर्श हमारे महात्मा गांधी जी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हैं, सरदार पटेल जी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का तो वस्त्र देखिए ना जी। वो किस तरह का वस्त्र पहनते थे सर। आपने उनके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत आप जानते हैं सर। लोहिया जी का जीवन कैसा था जी जी। राजनारायण जी का वस्त्र कैसा था, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का कैसा था। ये जो महान एक परंपरा है भारत की, इन लोगों ने कभी वस्त्र पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने भारत की वस्तुओं पर ध्यान दिया है। तब हमारा भारत इतना सशक्त बना है, इतना मजबूत बना है। और शिवराज पाटिल जी का तो सर 26/11 की घटना में वो कोठी बदलते रह गए और उनका गृह मंत्रालय उनके हाथ से चला गया। सिंह जी, आज अखिलेश यादव जी ने बहुत तारीफ की जो सपा एसपी गवर्नमेंट जिस प्रकार से काम किया, उन्होंने 108 एम्बुलेंस सर्विसेज का बहुत तारीफ किया, बोला हमने शुरू किया था, आज भी लगातार इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत यूपी में सबको सेवाएं दे रहे हैं। बट ये अखिलेश यादव जी जब बोलते कि बीजेपी सरकार शादी होने नहीं देंगे, शादी होने नहीं देंगे, आप लोग बूढ़े हो जाओगे, शादी नहीं होगा, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये बीजेपी सरकार क्या शादियां रोकने लगे, शादी नहीं कर सकते लोग? क्या चक्कर क्या है इस चीज के बारे में? अखिलेश यादव जैसे बड़े इतना नेता इस प्रकार से बोलना एक क्राइसिस है क्या शादी का? सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कोई बात कहते हैं तो उस बात का बहुत गंभीर और बहुत ही दूरगामी मतलब होता है। सर से जब हम लोग पिछली बार सर आप लोग थे और डिबेट हम लोग कर रहे थे तो पूर्वी यूपी के बारे में एक बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि तो हमने कहा था कि पूर्वी यूपी नौकरी चाहता है। पूर्वी यूपी का जो युवा है ना वो नौकरी चाहता है, वो मजदूर बनकर के नौकरी करना चाहता है, वो बहुत ही कम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भागीदार बन पाता है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत कम वो जा पाता है, उसको नौकरी पसंद है। पूर्वी यूपी, मध्य यूपी और खास करके जो पश्चिमी यूपी से जो लखनऊ से सटा हुआ जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है, उधर के लोग जो होते हैं वो नौकरी ज्यादा पसंद करते हैं। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि जब हम नौकरी नहीं देंगे, महंगी महंगी हमारे युवाओं ने डिग्रियां हासिल की हैं, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए युवा जो महंगी महंगी शिक्षा लेकर के आज डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं। 8-8 बार उत्तर प्रदेश में पेपर के लीकेज हुए हैं। इतनी गंभीर जो सवाल है कि पेपर लीकेज होने के बाद से नौकरियों के कैंसिल किए गए हैं। तो इस तरह से जब घटनाएं हुई है उत्तर 7 वर्षों में 4.5 लाख उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, अब तो मुझे कहने में बड़ा कभी कभी शर्म महसूस होता है कि वो संत परंपरा से आए,
वो झूठ इतना क्यों बोलते हैं? मुझे तो बहुत कभी कभी लगता है कि वो हिंदू धर्म के सिंबॉलिक फेस होकर के अगर इतना झूठ बोलते हैं, मुझे तो कभी कभी ये सोचने पर मजबूर हो कि वो नेता ज्यादा है, संत कम है, इसलिए कि वो उस लेकिन अब परिपाटी तो के नेता नेता हो है। गए ना सर, अब तो नेता ही हो गए ना। नहीं अब क्या है? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो उस परिपाटी के नेता है जिस पर कोई जनता भरोसा नहीं करती है, लेकिन एक विश्वास चीज नहीं है, करती है, जिनकी कथनी और करनी में भी भेद होता है। लेकिन ये एक चीज तो है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जिस प्रकार आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा, दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। मनी सिंह जी, जिस प्रकार आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का, लोग जिस तरीके से आपके साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। आई थिंक 80 में से सर कितनी सीटें आ रही हैं सर, ये तो बता दें जरा चलते चलते। सर हम लोगों की जो संगठनात्मक जो हम लोगों की तैयारी हुई है, जो हम लोगों ने 22 का चुनाव हारने के बाद से जो सर हम लोगों ने बूथों पे काम किया है, 58,184 जो हमारी ग्राम सभा है, हमारी ग्राम सभा की यूनिट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो ढकोसलावादी पन्ना प्रमुख है, उन ढकोसलावादी पन्ना प्रमुखों से हम लोग पूरी तरह से सामना करने के लिए तैयार हैं और एक एक बूथों पर एक एक वोट के लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे, संघर्ष करेंगे और लोगों को नीतियों से जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, पाखंड को हम लोग उजागर करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डलवाएंगे। और हमें उम्मीद है सर, हम आपको भरोसा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आने जा रहा है, श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो परिणाम आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं किया होगा। और गाजियाबाद, नोएडा से भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली नहीं पहुंच पाएगी। उत्तर प्रदेश में ही हम लोग राजनीतिक रूप से दबोच करके लखनऊ में ही खत्म कर देंगे और दिल्ली की सरकार भी जाएगी और यूपी की सरकार भी जाएगी। Look at that footage. Look at those crowds. अरे look at those crowd. वो crowd देखो यार, अरे बाबा रे बाबा, जबरदस्त, ब्रिलियंट स्टफ यार। ये फुटेज जो है मनी सिंह जी, ये फुटेज ये कॉर्पोरेट चैनल्स पे नहीं दिखेगी, मेन स्ट्रीम चैनल को ही दिखाएगा इसको। क्या बात, इसीलिए तो सर हम लोगों ने दिल से आभार बोला है सर आपको। जी थैंक यू सो मच मनी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाय द वे अभी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम ऑलरेडी, इज करेक्ट। हाँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच मनी सिंह जी, आपकी कृपा बनी रहे सर। थैंक यू सो मच, नमस्कार। राइट, एंड आई थिंक वील हैव टू गो अक्रॉस वेरी क्विकली टू भरत सिंह।